evening, guys. This is Sunny. I have Yes, plugged in Sunny. my friend's earphone. Now you can you all hear me? Listen me. Yes, we can hear you, Sunny. Okay. Hi, Prabhuji. It was another wonderful session. Thank Thank you. you very much for initiating this type of discussions. The story was the most subtle explanation of Sanatan. I would like to tell you that the story was the most subtle explanation of Sanatan. What happens? What we talked about ki we should do our karma, hai na? To get moksha, we should do bhakti to get moksha. There are unlimited ways actually, not only limited ways. So these are the basic things that we know. These are the basic instincts. What we call that's in our guts. I was just reading an article. There are 4 levels of instincts in a human. So at every instinct, we are having this basic things. But what happens that we do not interact this type of things with each other, isn't it? And since I'm a mechanical engineer, so if I will relate to you, there is a change in entropy. Entropy is a measure of entropy is the measure of actually disorderness in the disorder or say orderness in the universe. So the entropy change always occurs when there is an internal interaction between a system and its surrounding, isn't it? So we are system and the surrounding which is around us, like you people who have initiated this type of things. So we will have discussions on that sessions. So that will change the entropy, and entropy is not always desirable. But the most what actually I want to say that this type of discussion need to be done, क्योंकि ये सब चीजें जो हम अंदर से सोच पाते हैं बट ये बाहर नहीं आ पाता, हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते अपने सराउंडिंग से, और जब तक हम ये चीजें सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे अंदर की जो चेंजेस हैं वो दिखेंगे नहीं, वो मॉडिफिकेशंस वो ट्रांसफॉर्मेशंस दिखेंगे ही नहीं. एंड द लास्ट थिंग व्हाट यू टोल्ड अबाउट मोक्ष, अगर मैं मोक्ष की बात करूँ ना तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मोक्ष का मतलब बस ये समझते हैं कि व्हेन अ पर्सन डाइज उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी. पर नो, इट इज नॉट लाइक दैट. That is not the concept. यस, Because first of all, I said Atma cannot be created or Atma cannot be destroyed. It is just changes its form, like we changes our daily t-shirts, like whatever it may be, but it changes its exactly. form. That according to verse number 2, chapter number 28. Mm-hmm. You can study Gita. That here is written. न जानाति मयति न कदानंत मह्यम भूत भवानी बाहन भू अजानन्ति तत्व तस्य त पुराणो नहते हतनम शरण. मतलब आत्मा का कौन से काल में जन्म नहीं हुआ है कि वो कौन से काल में मर नहीं सकता. वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है. समझ रहे हो ना? उसी वार्ड से मैं स्टार्टिंग किया था, क्योंकि सनातन का वार्ड कहाँ से आया? वो अजन्मा है, मतलब उसका जन्म नहीं हो सकता, उसका मरण नहीं हो सकता. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे पास मोक्ष की मार्ग क्या है ना, वो जो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर से हमें जाके कनेक्ट करना पड़ेगा. लाइक शंकरा सेड, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य. तो ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, ओम, जो जिससे भी बोल सकते हो, मतलब ब्रह्म को तुम नहीं बोल सकते हो कि वो ओम है, वो ऐसे बोल है, उसका 20 हाथ है, क्योंकि उसका अगर तुम ओम बोलोगे तो वो उसका शेप हो गया. ब्रह्म का कोई शेप नहीं है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म नित्य है. तुम में है ब्रह्म, मुझ में है ब्रह्म, लैपटॉप में है ब्रह्म. लाइक वाइज हमारे हिंदू धर्म में एक कथा है, नृसिंगा कांच से आए थे, कुछ भी हो जाए, मतलब एक पत्थर से नृसिंह आए थे. क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं हर चीज में बिलोंग करता हूँ. लाइक एटम, हम हर चीज में उसे साइंस से रिलेट करने के लिए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन करा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएगा तभी जाकर मैं अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा. आप जो बोले तो पहले आंसर में देना चाहता हूँ, वो एंथैल्पी वाला पढ़े थे. जीरो फ्लो आपका होगा मैकेनिकल में, A equal to B, A is Yes. temperature and B is temperature, both create the C is temperature. लाइक हम तो अगर एक पात्र में गर्म पानी रखेंगे, एक पात्र में ठंडा पानी रखेंगे, उस दोनों को अगर कनेक्ट कर देंगे तो वो टेम्परेचर मिनिमम हो जाएगा, मतलब समान टेम्परेचर में दोनों पात्र आ जाएंगे. Exactly, Prabhuji. It was a wonderful explanation actually. वही मैं कहना चाहता तो हूँ कि जो वही हमारे मैं आसपास सेकंड टॉपिक में कहना चाहता था कि आत्मा तो कभी क्रिएट तो क्या, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया. आप वही पूछ रहे थे ना, मतलब आत्मा को कैसे एनलाइटमेंट होगा. तो मैं वही बता रहा हूँ कि तुम आत्मा को मतलब ऐसे कोई शेप नहीं दे सकते हो कि वो एक शेप के अंदर आ जाएगा, वो मतलब हवा की तरह हो, वो पानी की तरह हो. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग्स क्रिएटेड फ्रॉम एटम. वो चाहे काठ हो चाहे इंसान हो, इंसान भी कार्बन से बना है, ये मैं जो लैपटॉप भी बना वो भी कार्बन से बना है. जो तो एटम आ गया,
तो वही एटम को हमारा कॉन्सेप्ट में शिवलिंग कहा जाता है। जैसे लिंक का एक स्टेप होता है ना, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, वही एक एटम होता है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और वही जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसको मैंने शक्ति कहा है। एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे एक ही क्रिएट हुए हैं, और उसके चारों तरफ जो फोर्स है उसको शक्ति बोला जाता है। शक्ति मतलब हमारे जो हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हो जाए, मतलब हम जैसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो मेरे साथ हमेशा ही होता है। आप सब बोलेंगे आपके साथ नहीं हुआ है। कभी आप देखे हो कि आपका एक फ्रेंड गुनगुनाता है कोई गाना, ऐसे ही मतलब मन मन में ऐसे ही गुनगुनाता है, होगा आप उस गाने को गुनगुनाने लगते हो। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? किस किस के साथ हुआ है? तो वो कैसे हो गया? मतलब वो तो कुछ गुनगुना रहा है, आप भी वो गाना भी नहीं गा रहे, बस अपने मन में गुनगुना रहा है, आप उस गाने को गुनगुनाने लगते हो। क्यों? हो सर, वो अट्रैक्शन होता है। वही अट्रैक्शन हर चीज में है। जैसे मंदिर में एक लिंगा हो गया, लिंगा के ऊपर आप पानी डालते हो, वो सब क्या बोलते हैं, अभी लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि ऐसा क्यों करो, दूध क्यों डाल रहे हो, उसको बच्चे को पिला दो। तो वैसा नहीं होता। वो जो दूध डालते हैं ना, वो जो बेलपत्र हम देते हैं शिवलिंग के, उसका कुछ एनर्जी हम पे भी आता है। तो हर चीज का कोई लॉजिक है, बिना लॉजिक जाने हम कुछ कर ही नहीं सकते। और हिंदुइज्म का बेसिक वही है कि तर्क में वो जयते, मतलब हम भक्ति में जय नहीं करते, हम तर्क करते हैं। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, हम तर्क करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, व्हाई दिस इज डन। वही मैं बोलना चाहता हूँ। तो और कोई क्वेश्चन है नहीं? आप समझ नो नो पाए? नो नो, और या मतलब बिल्कुल कुछ? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिकॉज मेरे को हमेशा से ना स्पिरिचुअलिटी ने बहुत ही मेस्पराइज करा है। आई हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एंड मैं अपने सारे दोस्तों को या फिर whoever is within my reach, मैं उन्हें जरूर बोलता हूँ, we must always try to excel in 4 spheres of life. We should excel physically, we should excel mentally, we should excel financially, and we should excel spiritually. So it was a session on Like, spiritual. yes, very yes, wonderful. likewise I said, हमें प्रति इंडिविजुअल को अपने मत में देना चाहिए। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने कर्म के मार्ग में ठीक हूँ, पर मैं जो कर्म कर रहा हूँ ना, उससे किसी का क्षति नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी काम करो, कर्म करो तो परफेक्ट से करो, भक्ति करो परफेक्ट से करो, ज्ञान के अर्जन करो परफेक्ट से अर्जन करो। ऐसा नहीं है कि कर्म कर रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइक कुत्ते की जिंदगी आए हो, कुत्ते की जिंदगी मर जाओगे। तो वही वाला कंसेप्ट हमारा है, आत्मा सही है। जैसे एक पेड़ को तुम काटते हो ना, उसके अंदर भी आत्मा है और वो दूसरा जन्म लेता है। एक मछली को तुम खाते हो तो वो भी दूसरा जन्म ही लेता है। क्या पता तुम्हारा पूर्व जन्म में तुम मछली हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो। Exactly. हमें जो भी करो, जो भी करो परफेक्ट से करो। तुम किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे हो गया ये अब्राहम की रिलीजन हो गया, वो एक ही गॉड पे भरोसा करते हैं। वो भी हमारे धर्म में लिखा है कि तुम एक ही गॉड पे भरोसा कर सकते हो, गॉड कोई दूसरा नहीं होता। एगो में तो ब्रह्म, मतलब ब्रह्म एक ही है। लेकिन ये नहीं है कि मैं बाउंड हूँ उसको फॉलो करने के लिए। मेरा भी इंडिविजुअलनेस है, मैं चाहूँ तो उसको फॉलो कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो दूसरे लाइन पे कर सकता हूँ। बुद्धा ने एक बात बोली थी, जब तक तुम्हें फील नहीं होता है कि यहाँ पे कुछ है, भगवान है, ये है, वो है, तब तक तुम ट्राई करते रहो। तब तक जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक तुम ट्राई करते रहो कि ये चीज है या नहीं है। जब भी तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे भगवान फील आ रहे, मतलब मैं एक मंदिर जाता हूँ, वहां पे मुझे फील होता है कि हाँ भगवान है, मैं जाके उसके सामने कुछ मांग सकता हूँ, तभी तक तुम ट्राई कर सकते हो। तुम्हें कोई बाउंड्री नहीं। फाइनली So, Yes, yes. yeah, Sunny. So, do you have any other question? No, no, no. You can move on. And Sunny, I really appreciate the fact that you could add on to what Prabhuji said, and it really added a new dimension to the entire discussion in the first place. So we at the beginning we did not think of covering spirituality, but it got added up in the discussion because we thought of interacting, and you came up with this idea of asking this sort of notion. So that opened up a new door altogether, and I really appreciate and thank you for opening up that. So we have got a new person on the chat, Sambit. Sambit, if you're able to hear me, I request you to introduce yourself. And if you have, I don't know, I know you won't be having any question because you joined when the session is about to get over. So if you can just introduce yourself, we can quickly move on to the second part and wrap this up.
संबित, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. I'm getting you, sir. Actually, I'm friend of Prabhuji. प्लीज डोंट एड्रेस मी एज सर, हम लोग सब एक कम्युनिटी के मेंबर हैं, वी आर Sir, ऑल टुगेदर इन दिस। जी जी, बोलिए। just explain what is this? I mean, what is this thing going on? या सो बेसिकली संबित, ये हमारा तीसरा सेशन है। हमारा आज का टॉपिक है इंडिया फॉरगॉटन ट्रेजर्स। तो बेसिकली हमारी जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, आपको तो पता ही होगा, मोहनजोदारो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। इट इज इक्वली इन द लाइन विथ जो इजिप्ट का सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो फॉल्स इन द सेम बकेट। तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि एक ऐसे सेशन में ऐसे बातें करेंगे जो कि इंडिया का कल्चर जो पिछले दौर पे बहुत इंपॉर्टेंट था, ओवर द एजेस इधर उसको भुला दिया गया है, या फिर हम लोग उसको उस इंपॉर्टेंस के साथ उसको देखते नहीं है जितना हमें देखना चाहिए, और उसकी वजह से हम लोग अभी कैसे सफर कर रहे हैं एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट इट इज ब्रिंगिंग इन द सोसाइटी। तो वी स्टार्टेड विद प्रभु जी एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट सनातन धर्म, ये कल्चर क्या है। प्रभु जी, अगर आप 5 मिनट में क्विकली इसको समराइज कर देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर संबित, देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट सेशन। Ajay, sorry. Ajay, no, Sandeep, we both are studied at Sisu Mandir, so you can know about what is the religion, what is our basics, what is our ethics. So in short, Definitely. yes, in short, I will remember you that how we were created and what is the way we have found our moksha, like enlightenment. So in this topic, I would explain something about how we find our moksha and what culture we are belongs to. So if you have any doubt, you can directly ask me.